السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستوں، حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو چند نصیحتیں فرمائی ہیں۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو، جن کا نام انم تھا، چند نصیحتیں فرمائی ہیں جن کا ذکر قرآن مجید کی سورہ لقمان میں ہے۔ حکیم لقمان کا بیٹا ایک بار تجارت پر جانے کے لیے اجازت مانگنے آیا کہ ابا جان، میں تجارت کے لیے سفر پر جانا چاہتا ہوں۔ تب حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو چند نصیحتیں فرمائی کہ جہاں بھی جاؤ ان باتوں پر عمل کرتے رہنا، اور پھر فرمایا کہ جب سفر کا سامان تیار کر لینا تو جانے سے پہلے میرے پاس سے ہو کر جانا، تاکہ تمہاری رہبری اور رہنمائی کے لیے تمہیں کچھ باتیں بتانی ہیں۔ لہٰذا حضرت لقمان کا بیٹا جب سامان سفر باندھ چکا تو دوبارہ اپنے والد یعنی حضرت لقمان حکیم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ تب حضرت لقمان کہنے لگے، اے بیٹا، جب سفر پر جاؤ گے تو راستے میں ایک میدان ملے گا۔ اس میدان میں ایک چشمہ ہے جس کا پانی بہت ہی ٹھنڈا اور میٹھا ہے، اور اس کے کنارے ایک پیڑ ہے جس کی چھاؤں گھنی اور فرحت بخش ہے، لیکن خبردار اس چشمے سے پانی نہ پینا اور اس پیڑ کے سائے تلے بالکل نہ بیٹھنا، اور اللہ تم کو اس ہلاکت سے محفوظ رکھے۔ اور وہاں تم کو ایک بوڑھا ضعیف آدمی ملے گا جو عمر میں اس پیڑ سے بڑا ہے، پھر جیسا وہ تم کو کہے اس کی بات لازمی ماننا۔ اور دوسری بات یہ کہ جب آگے جاؤ گے تو فلاں گاؤں میں جانا، وہاں کے لوگ میرے دوست ہیں، وہ تم کو عزت و اکرام کے ساتھ اپنے گھر لے جائیں گے۔ اور اس گاؤں میں ایک عورت ہے، نہایت حسین و جمیل اور مالدار ہے، وہ لوگ اس عورت سے تمہاری شادی کرانا چاہیں گے، لیکن تم ہرگز قبول نہ کرنا، اور خدا اس سے تمہیں اپنی پناہ میں رکھے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ ایک آدمی جو ایک شہر میں رہتا ہے، مدتوں پہلے وہ مجھ سے قرض لے گیا ہے، بس تم اس سے وہ قرض وصول کر کے لے آنا، اور خبردار رات کو اس آدمی کے ہاں نہ ٹھہرنا۔ اور یہ تمام نصیحتیں یاد رکھنا، اور اب جاؤ، میں تمہیں خدا کی امان میں سونپا۔ لہٰذا وہ اپنے باپ کی بتائی ہوئی باتوں کو تسلیم کر کے سفر پر نکلا۔ جب اس میدان میں پہنچا جس کے بارے میں اس کے باپ نے نصیحت کی تھی تو اس کے کنارے ایک پانی کا چشمہ ملا۔ اس کا پانی بہت ہی صاف، ٹھنڈا اور میٹھا تھا، اور اس چشمے کے کنارے ایک پیڑ کو دیکھا جس کی چھاؤں بہت ہی گھنی اور فرحت بخش تھی۔ گرمی اور پیاس کے مارے وہ چاہتا تھا کہ اس چشمے سے پانی پیے اور اس پیڑ کی چھاؤں میں دم بھر کے لیے آرام کرے، لیکن اسی وقت اسے اپنے باپ کی بتائی ہوئی نصیحت یاد آئی، تو وہ وہاں سے قدم آگے بڑھانے لگا۔ تب اس نے پیڑ کے سائے تلے ایک بزرگ آدمی کو بیٹھا ہوا دیکھا۔ بزرگ آدمی نے اسے پکارا، اے لڑکے، کہاں جاؤ گے؟ ایسے دھوپ میں اور سخت گرمی پڑ رہی ہے، اس چشمے کا ٹھنڈا پانی پیو اور ذرا چھاؤں تلے دم لے لو، میرے پاس آ کر بیٹھو۔ لڑکا بولا، ہرگز نہیں بیٹھوں گا، کیونکہ میرے باپ نے مجھے اس سے منع کیا ہے۔ تب وہ بزرگ کہنے لگا، قسم ہے تیرے رب کی، اس دھوپ میں اور گرمی میں نہ جا، اور میرا کہا مان۔ یہ بات سنتے ہی لڑکے کو باپ کی بات یاد آئی کہ وہ بزرگ تجھے جیسا کہے اس کا کہنا ماننا۔ چنانچہ اس نے اس بزرگ کا کہا مانا اور سلام کر کے بیٹھ گیا، چشمے سے ٹھنڈا پانی پیا اور تھوڑی دیر سستانے کو لیٹ گیا اور سو گیا۔ تب اس پیڑ سے ایک سانپ اس لڑکے کو کاٹنے کے لیے اترا۔ لڑکا سویا ہوا تھا لیکن بزرگ جاگ رہا تھا۔ بزرگ نے جیسے ہی سانپ کو دیکھا تو اس نے سانپ کو مار کر اس کا سر کاٹ دیا۔ جب لڑکا اٹھا تو دیکھا کہ ایک سانپ بغیر سر کے مردہ پڑا ہے، تو بزرگ سے حقیقت جان کر وہ حیران رہ گیا اور باپ کی پہلی نصیحت کا راز معلوم ہو گیا۔ اس کے بعد لڑکا وہاں سے اٹھا، اپنا سامان سفر باندھا اور اس بزرگ کو سلام کر کے جانے کی اجازت مانگی۔ تب بزرگ آدمی نے پوچھا کہ تم کہاں جانے کا ارادہ رکھتے ہو؟ لڑکے نے کہا، فلاں گاؤں جا رہا ہوں کہ وہاں میرے باپ کے دوست ہیں۔ بزرگ نے کہا، اگر تم کہو تو میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ لڑکے نے کہا، بہت اچھا، آپ بھی چلیے۔ تب دونوں اس گاؤں کی طرف چل دیے۔
दोनों गांव पहुंचे तो वहां के लोगों ने पूछा कि तुम कौन हो। तब लड़के ने कहा, मैं हकीम लुकमान का बेटा हूं और यहाँ तिजारत की गर्ज से आया हूं। तब गांव के लोग उन्हें निहायत ताजीम व तकरीम के साथ अपने घर ले गए और उन्हें खाना खिलाया और हर रोज मेहमान नवाजी करने लगे। एक दिन उन लोगों ने कहा, ए लड़के, हमारी कौम के एक औरत निहायत खूबसूरत, नेक बख्त, मालदार और हस्बो नसब से दुरुस्त है। हम चाहते हैं कि तुमसे उसका निकाह कर दे। ये बात तुम्हारे हक में बेहतर साबित होगी, तुमको खूब मालो दौलत हाथ लगेगी। तब लड़के ने कहा कि मेरे बाप ने इससे मना किया है कि सफ़र में किसी हुक्म के पाबंद ना होना, वरना नुकसान और तकलीफ उठाओगे। तब वह बुजुर्ग जो साथ में थे कहने लगा, जब यहाँ के सभी रईस की यही आरजू है और यह लोग इसकी गवाही देते हैं और यह भी कि औरत हसीन व मालदार है, तब शादी करने में कोई नुकसान नहीं और कोई अंदेशा न करो। तब लड़के को बाप की नसीहत याद आई कि वह बुजुर्ग जो भी कहे उस पर अमल करना। तब लुकमान के बेटे ने अपने बुजुर्ग साथी के कहने पर उस मालदार औरत से निकाह कर लिया। तब उस कौम का एक आदमी लड़के के पास आया और कहने लगा कि मैं हजरत लुकमान की बहुत इज्जत व तकरीम करता हूँ और इस वजह से तुम्हारा भी खैर ख्वाह हूँ। तुमने ना हक इस औरत से निकाह किया, वह बहुत बुरी औरत है, तुमसे पहले अपने 9 शौहरों को अपनी खलबत गाह में मार चुकी है, बस अब तुमको भी मार डालेगी। अगर तुम भला चाहते हो किसी हिले बहाने से यहाँ से निकल जाओ। तब लड़का उसकी बातें सुनकर डर गया और अपने फैसले पर पछताने लगा और गमगीन हो गया। तब बुजुर्ग साथी ने उसे संजीदा देखा तो उससे पूछा, क्या बात है, तुम बहुत गमगीन व परेशान दिख रहे हो। तब लड़के ने कहा कि मैंने सुना है कि मेरी बीवी ने, जिससे मैंने यहाँ निकाह किया है, मुझसे पहले उसने अपने 9 शौहरों को शादी की पहली रात ही अपनी खलबत गाह में मार डाला है। डरता हूँ कि वह मुझे भी ना मार डाले और शायद इसी वजह से मेरे बाप ने मुझे इस निकाह से मना किया था। तब उस बुजुर्ग ने कहा, कुछ अंदेशा न करो और बेफिक्र रहो, मैं तुमको एक हिकमत बताता हूँ, उस पर अमल करना। वह यह कि जब रात को तुम्हारी बीवी तुम्हारे पास खलबतगाह में आए तो किसी बहाने से उसे वहां छोड़कर मेरे पास आ जाना। तब हम उसकी तदबीर और इलाज करेंगे। जब उसकी बीवी रात को उसके पास आई तो उसने बहाने से कहा कि तुम यहाँ बैठो, मैं जरा बाहर होकर आता हूँ। बीवी ने पूछा, कहाँ जा रहे हो? लड़के ने कहा कि कजाए हाजत को जा रहा हूँ, तुम तब तक यहाँ इंतजार करो और इसके अलावा भी एक काम है, वह मैं वापस आकर बताऊंगा। तब लड़का वहाँ से निकला और सीधा उस बुजुर्ग के पास पहुँचा। तब बुजुर्ग ने उसे एक अंगारों से भरा हुआ आतिशदान लाने को कहा। जब लड़का आतिशदान ले आया तो बुजुर्ग ने वह सांप का सर जो पेड़ के नीचे से काट कर लाया था आतिशदान में रख दी और आतिशदान को लड़के के खलबतगाह से बाहर आया और गांव के लोग तमाम माजरा सुनकर बहुत हैरान हुए और लुकमान हकीम के बेटे के बच जाने से बहुत खुश भी हुए। इसके बाद हकीम लुकमान के बेटे ने इरादा किया कि अपने बाप के कर्जदार के पास जाकर कर्ज वसूल करे तो उसने अपनी साथी बुजुर्ग से कहा कि फला गांव में एक आदमी के पास मेरे बाप की रकम उधार है, तो मैं वहां जा रहा हूं। तब उस पीर बुजुर्ग ने कहा, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। तब वह दोनों आदमी उस गांव की तरफ चल दिए। उस गांव में पहुंचकर उन्होंने लोगों से कर्जदार आदमी के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि वह आदमी तो बड़ा फसादी और दगाबाज है, यहाँ तो तुम अपनी नाहक जान गंवाने आ गए हो, इसलिए तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि तुम यहाँ से वापस चले जाओ। और वह दगाबाज आदमी एक बार किसी का रुपया लेकर वापस नहीं करता। लेकिन उन दोनों ने लोगों की बात नहीं मानी और वहाँ से चलकर उस आदमी के पास पहुँचे और सलाम के बाद लड़के ने उससे कहा, मैं हकीम लुकमान का बेटा हूँ और अपने बाप का कर्ज वसूल करने आया हूँ। तब उस आदमी ने कहा कि बहुत अच्छा, आप हमारे हकीम के फर्जंद हो तो आज की रात
हमें मेहमान नवाजी का सर्फ बख्शिए। सुबह को हिसाब किताब करके जो रकम बनेगा वह वापस कर दूंगा। लड़के ने कहा, मेरे बाप ने रात को यहाँ ठहरने से मना किया। तब उस बुजुर्ग ने कहा जो इसके साथ थे, ये लड़के कुछ परवाह नहीं, चलो आज की रात यहाँ रुक जाते हैं, फिर खुदा ने हमारी किस्मत में जो लिखा हो है तो वो होकर रहेगा। लिहाजा उस बुजुर्ग के कहने पर वह मान गया, क्योंकि बुजुर्ग की करामातों से लड़का वाकिफ था और बाप का भी हुक्म और नसीहत थी कि अपने साथ वाले बुजुर्ग की बात मानना। लिहाजा वह दोनों उस दगाबाज आदमी के घर ठहर गए। जब वह खाने बगैर से फारिग हो गए तो वह दगाबाज आदमी उन दोनों को दरिया के किनारे बनाए एक मकान पर ले गया, और मकान इसी तरह बनाया हुआ था कि जो कोई रात को इसमें सो जाता तो ज्वार भाटा आकर उसे डुबो देता। उन दोनों को इस मकान में ठहरने को कहा। लिहाजा रात को लड़का तो सो गया और बुजुर्ग जागते रहे। जब आधी रात का वक्त हुआ तो मौजें चढ़ने लगी और पानी मकान पर चढ़ आया। तब बुजुर्ग ने लड़के को नींद से जगाया और वहां से उठकर ऊपर वाले खाने पर चले गए जहां इस दगाबाज आदमी के बेटे सो रहे, तो वहां तशरीफ ले गए। वहां से उसके बेटों को तख्त समेत उठाया और नीचे लाकर अपनी वाली जगह पर सुला दिया और खुद ऊपर उनकी जगह पर सो गए। जब फज्र के वक्त वह आदमी आया तो क्या देखता है कि वह दोनों ऊपर वाली मंजिल पर उनके बेटों की जगह पर सो रहे हैं और उसके बेटे अपने बेटे निचली वाली मंजिल पर पानी में मुर्दा पड़े हैं। तब वह दगाबाज पुकार कर उसने कहने लगा कि हाय सद अफसोस, मैंने तुम्हारे लिए यह फरेब किया था कि तुमको मार डालूं, लेकिन मैं अपने फरेब में आप हलाक हो गया, मेरे सब बेटे मारे गए। तब इन दोनों ने कहा कि जो किसी के लिए बुरा करता है वह हकीकत में अपने लिए ही करता है। लुकमान के बेटे ने आदमी से अपने बाप का रुपया वसूल किया और अपनी बीवी को लेकर जिससे गांव में निकाह किया था, साथ में उस बुजुर्ग और साथ में साजो सामान के साथ अपने वतन की वापसी का सफर किया। जब हकीम लुकमान का बेटा अपने मकान के करीब पहुंचा तो उस बुजुर्ग ने पूछा कि ए बेटे, तू इतना अरसा मेरे साथ रहा, सो तूने मुझे कैसा पाया? तब लड़के ने कहा कि बेशक मैंने आपको नेक मर्द पाया और आपकी बरकत से बहुत सी मुसीबतों से निजात मिली और नेक बख्त बीवी मिली और इस कदर मालो असबाब मिला। तब उस बुजुर्ग ने कहा कि माल में से मुझे भी आधा हिस्सा दो। तब लड़के ने कहा, आप अपनी मर्जी से ले लो, जितना भी हिस्सा चाहिए। बुजुर्ग ने एक तरफ बीवी के साथ थोड़ा सा माल रखा और दूसरी तरफ ज़्यादा हिस्सा माल का रखा, और फिर लड़के ने कहा कि इनमें से जो तुम चाहो रख लो और दूसरा हिस्सा मेरे लिए छोड़ दो। तब लड़के ने अपनी बीवी और उसके साथ थोड़ा हिस्सा माल का चुना और कहा, मेरे लिए यह काफ़ी है। लिहाजा दोनों फरीक अपना अपना हिस्सा लेकर चल दिए। थोड़ी दूर गए ही थे कि बुजुर्ग ने लड़के को आवाज़ देकर रोका और उससे कहा, ए लुकमान के बेटे, तू किस वजह से मुझे ज़्यादा हिस्सा माल का दिया जाता है? कहीं इसका सबब यह तो नहीं कि तूने जो कारनामे मुझसे देखी उसकी वजह से मुझसे खौफजदा होकर ज़्यादा माल दिए जाते हो? लड़के ने कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं, बल्कि यह तो इस वजह से है कि मैंने आपकी बरकत से जो नफ़ा उठाया है और मुसीबतों और मुश्किलों से रिहाई पाई है, तो बस इस सबब से मैंने खुश होकर अपनी खुशी और मर्जी से दिए जाता हूँ। तब बुजुर्ग ने कहा, ए लड़के, तुम्हारी नेक नियत, आला जरफ़ी और अखलाक से मैं बहुत खुश हूँ, और ये सब माल असबाब भी तुम ही लेते जाओ, भला हमारा इस दुनियावी मालो असबाब से क्या काम? लड़के ने पूछा कि आप कौन हैं और किस वजह से मेरे साथ रहे? तब बुजुर्ग ने कहा, अल्लाह का भेजा हुआ एक फ़रिश्ता हूँ। दोस्तों, अगर इस वीडियो में कोई गलती हो गया हो तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर ज़रूर करें, और हमें कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। शुक्रिया।